Hello students. Today I'm going to teach you about minor disorders of pregnancy and its management. So minor disorders of pregnancy. What are the minor disorders of pregnancy? There are certain disorders, minor disorders like vomiting is there, heartburn is there. That is happening in the pregnancy, and it usually happens to all the women in the pregnancy. This may be because of this is due to the hormonal changes, or because of the accommodation changes, that is because of gravid uterus, the weight, metabolic changes are there, postural changes are there. So there are certain small disorders that happens to the women usually during the pregnancies. So today we will see what all are the minor disorders that are happening in the pregnancy, during the pregnancy, and we will see what management we can give to this mother. Okay, so starting with, so according to system wise we'll go. So first one, in the digestive system, here we are having firstly nausea and vomiting. So this is a very common minor disorders that you usually see during the pregnancy. The mother complains that she is having a nausea and vomiting. So nausea and vomiting is most common disturbance during the early pregnancy, and it's a common disorder that about 50% of women is having during the 4th to 16th week. So first 3 months we say usually the more of nausea and vomiting is there during the pregnancy, which we call as morning sickness. ठीक है, जो प्राइमी ग्रेविडा मदर होती है उनमें ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस देख सकते हैं. सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस, किस कारण से ये वॉमिटिंग होता है? तो जो भी माइनर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो बिकॉज ऑफ द चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से होता है. तो बिकॉज ऑफ हाई गोनाडोट्रोपिन लेवल्स, सो देर इज HCG लेवल इज मोर बिकॉज ऑफ फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट. HCG क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. सो ये हार्मोन के लेवल इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ से ज़्यादा रहता है, तो इसलिए ज़्यादा यूजुअली जो वॉमिटिंग है वो देखा जा सकता है. एंड इंक्रीज ऑफ लीवर ग्लाइकोजन रिजर्व, लैक ऑफ पायरोडॉक्सिन एंड डिमिनिश्ड गैस्ट्रिक मोटालिटी. जो गैस्ट्रिक मोटालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट हम बोलते हैं वो डिक्रीज हो जाता है. और साइकोलॉजिकल भी रीज़न है कि जैसे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है. मॉर्निंग में यूजुअली मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली क्यों होता है? क्योंकि द होल यू सी दैट द प्रेग्नेंट वुमेन हैव टू ईट every 2 hours, like every 2 hours she have to eat, because अगर नहीं खाते तो the blood sugar level comes low, more consumption is there, metabolic rate भी increase होती है, तो they have to eat. Now in the night 8 hours or 8 hours sleep if she is taking, so in the morning this glucose, this blood sugar level drops. So now the vomiting is happening because of this condition. Sometimes there is increase in the smell, some smells of food are also not often causes mother to have vomiting. So this is some of the causes that leads to vomiting. Now, what will be the management for this? So we can advise the mother to have salads and light snacks, not taking a full meal but taking a small and frequent meal. So that will be more effective than taking like morning if she is having a heavy breakfast, then because of GI mortality is less, है ना. मॉर्निंग में अगर ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होता है कि GI mortality लेस है, तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज़ वन thing that you can say. Then carbohydrate snacks at bed time. जैसे ही उठते हैं मॉर्निंग में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, if we are having a carbohydrate snack that will decrease the
नॉशिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। तो ड्राई टोस्ट है, बिस्किट है, जैसे ही वेकअप करते हैं मॉर्निंग में तुरंत लेने का। देन नर्स में एडवाइज द मदर टू कीप ड्राई स्नैक क्रैकर्स इन द बेड साइड, बीच बीच में खाने के लिए क्रैकर्स रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर वॉमिटिंग हो रहा है एक्सेसिव वे में तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूर रहेगा। If nausea occurs during the day, she should try to eat small meals frequently. And so I said small and frequent diet, which is more effective during the pregnancy, rather taking like 3 meals a day. So you divide that meal in 2 hours gap, so that that will be more effective and it decreases the nausea and vomiting. And if the vomiting becomes severe, the mother may lose the weight and become dehydrated and ketosis. So she have to see that if the vomiting is becoming excessive, that is called as hyperemesis gravidarum, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है। तो ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है, मदर डिहाइड्रेट हो रही है, तो शी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल एंड शी हैव टू टेक द रेस्ट एंड अवॉइड द फैटी फूड। नाउ नेक्स्ट इज़ द हार्ट बर्न, जिसको हम पायरोसिस भी कहते हैं। हार्ट बर्न जो होता है, इट इज़ अ बर्निंग पेन और सेंसेशन इन द मीडियस्टर्नल रीजन दैट कॉज्ड बाय रिफ्लेक्स ऑफ द स्टमक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस। सो जो स्टमक का कंटेंट है जब वो ईसोफेगस में आ जाता है, उसकी वजह से बिकॉज ऑफ द HCl प्रेजेंट इन द स्टमक कंटेंट, it will irritate the esophagus, that leads to a burning sensation and pain, जिसको हम हार्ट बर्न बोलते हैं, या सीने में जलन भी बोल सकते हैं, हिंदी में ऐसा बोला जाता है। तो ये जो है ये बहुत कॉमन होता है इन प्रेगनेंसी। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक स्फिंक्टर, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? इट रिलैक्सेस द मसल्स, सो इट रिलैक्सेस दिस कार्डियक स्फिंक्टर, जिसकी वजह से जो स्टमक कंटेंट है वो ऊपर आ जाता है। So heartburn is most troublesome in about 30 to 40 week of gestation, जब last trimester, because ये जो stomach है it is under the pressure of this growing fetus. Okay, so it put pressure over the stomach, and because of that it can be more seen in 30th and 40th week. Next is a management. How we will manage this condition is choose the food and drink that is easy to digest, and that means skipping rich high fat or spicy dishes, chocolate, citrus fruits or juices. So the thing which causes more irritation और हाई फैट है, स्पाइसी डिशेस है जो कि डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं, और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं इसमें एसिड होता है, तो दैट विल कॉज द इरिटेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मोर, सो दैट food जो हम खा रहे हैं that should be easily digestible quickly. Okay, the drink and the fluid before or after eating. Milk can help to settle the heartburn. It decreases the heartburn. Fluid can be taken after and before the eating. Small and frequent diet, that is most effective. That is taking a small and a frequent diet, so it does not completely fills the stomach और ये बाहर नहीं आता है। and दूसरी चीज़ है कि keep upright after eating. Just after eating food one should not lie down. Okay, प्रेगनेंसी में ये जो है खाना खाने के बाद एकदम से लेटना नहीं चाहिए या बेंड नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है? ऑलरेडी द कार्डियक स्फिंक्टर इज लूज, तो व्हाट हैपेंस? इट विल कम अप, सो कंटेंट विल कम अप, सो अवॉइड lying down after eating food. Okay, so this is one of the thing. Either she can sit up or she can have a walk, but do not bend over. So this is the main
advice that you can give. Then wearing a loose cloth that will not that do around the stomach, जो ज़्यादा pressure apply ना हो उसके लिए. और जब भी if mother is sleeping, so she should always have an upright position, so it helps, the gravity helps the stomach acid to come down. Okay, for persistent heartburn, antacid can be prescribed by the doctor, and mixture of aluminum hydroxide and magnesium hydroxide. So these are the common some of the antacids, Gelusil, that can be advised by the doctor. Now third is the hypersalivation. Hypersalivation or stylism is caused by the hyperactivity of the parotid glands. So all the disorders are because of any hormonal changes or in the endocrine system. So there you can see here the parotid glands are hyperactive. So during the pregnancy there is excessive salivation. And management for this is hypersalivation can continue throughout the pregnancy and disappears during the early puerperium. So she can use a mouthwash, or if she feels. Then constipation because it is due to the smooth muscle relaxant effect of the progesterone. So the increased level of progesterone, it causes the decreased peristalsis. The GI motility जो होती है वो कम हो जाती है because of the प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है. तो इसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, क्योंकि GI मोटालिटी जो होती है वो कम हो जाती है. और प्रेगनेंसी के टाइम पर ये कंडीशन कुछ ज़्यादा ही एग्रावेट हो सकती है एक्टिविटी, क्योंकि यूजुअली प्रेग्नेंट वुमेन की अगर एक्टिविटी कम हो गई है, मसल लूज, टोनिसिटी बिकॉज ऑफ हार्मोन रिलैक्सन, प्रेशर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट का प्रेशर की वजह से, द यूज़ ऑफ आयरन एंड विटामिन सप्लीमेंट जो है वो भी ले रहे होते हैं, वो भी एग्रावेट कर देते हैं कॉन्स्टिपेशन को. और इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ओरल आयरन एंड एग्रावेटेड ह्यूमरॉइड्स. एग्रावेट if hemorrhoids, it will lead to hemorrhoid अगर कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन रहा तो उसकी वजह से हेमरॉइड्स हो सकते हैं. तो मैनेजमेंट क्या करना है ड्यूरिंग दिस फॉर द कॉन्स्टिपेशन इज़ इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स डाइट में इंक्लूड करना है. रफेजेस इंक्लूड करना है. मॉर्निंग में सुबह उठ के वार्म वाटर लेना है, जिससे कि GI मोटालिटी इंक्रीज़ होती है. और ड्रिंक ग्लास ऑफ फ्रूट जूसेस. देन एक्सरसाइज regular walking. So that can be done for the constipation. Other than that, for the constipation, laxatives can also be advised if the constipation is more. So that will be advised by the doctor. Now the musculoskeletal system, what all are the minor disorders we can see here. So here firstly is the backache, which is very common during the pregnancy. You can see the mother complaining of it. Backache occurs during the later month of pregnancy, and why it is happening is because of the gradual weight gain, and the body's center of gravity is also changed, and there is a stretching of the muscles. abdominal muscles stretch हो रहे हैं, जो center of gravity है वो change हो जा रहा है. और इसके वजह से जो बैक के जो मसल्स है वो क्या हो रहे हैं, वो शॉर्टन हो जा रहे हैं. एब्डोमेन का मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, तो वो ज़्यादा स्ट्रेन जो है लिगामेंट्स में दे रहा है बैक साइड में, और इसके वजह से जो है बैक एक होता है, स्पेशली लंबार रीजन में.
हम देख सकते हैं। देन मैनेजमेंट इसके लिए क्या करना है, एडवाइस रिलेटेड कंफर्टेबल पोजीशन। तो जो भी देर आर सर्टन पोस्चर्स या पोजीशंस जो मदर ले सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो कि उनको कंफर्टेबल देते हैं। और ऑलवेज उनको जो पोस्चर है कैसे रखना है उसका एडवाइस हमेशा देना है, कि जो पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज होती है वो बता सकते हैं, और जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रखें, बैठते समय स्ट्रेट रहे, बेंड ना हो ज़्यादा, उसके वजह से बैक एक भी होता है। तो बेंड नहीं होना है, स्ट्रेट पोस्चर रखना है। कभी भी कोई चीज़ नीचे से अगर उठानी है तो स्काउटिंग पोजीशन से उठानी है, कभी झुकना नहीं है। सो बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेनी होती है, जिससे जो पोस्चर मेंटेन रहेगा, तो that will lead to less strain over the back and backache will be relieved for some extent. Lying on the sideways from the discomfort with affected leg uppermost may relieve the प्रॉब्लम। तो यूजुअली जो जिस साइड में ज़्यादा पेन होता है तो वो लेग को ऊपर रख के, और पिलोज भी यूज़ कर सकते हैं। और स्काउटिंग पोजीशन, कोई भी सामान लेना है तो स्काउटिंग पोजीशंस यूज़ करना है। वी कैन एग्जाइन पोस्चर्स, जैसे आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पर आप पोस्चर्स देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये पहला जो है स्ट्रेट, मैंने जैसे बोला स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट सिटिंग पोजीशन भी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जो बैक है उसको स्ट्रेट रखना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, तो यूजुअली उनका झुकाव आगे की ओर ज़्यादा जाता है। लेकिन कोशिश करना है सीधे बैठने की। और सम एक्सरसाइज आर देयर, दिस इज़ पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज, देन दिस इज़ एनिमल पोजीशन, स्काउटिंग पोजीशन, कोई भी सामान उठाना है स्काउटिंग पोजीशन में लेना है। तो ये एडवाइस हम कर सकते हैं। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। देन एनाल्जेसिक, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स भी एडवाइस करते हैं डॉक्टर। देन लेग क्रैम्प, ये सेकेंड कंडीशन है मस्कुलोस्केलेटल की। लेग क्रैम्प्स भी एक माइनर डिसऑर्डर है। इसमें सडन ग्रिपिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द काफ मसल्स, इट मे बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ dissoluble serum calcium and elevation of serum phosphorus, so that leads to leg cramp. What can be the management is, advise the women to do some leg stretching exercises होते हैं। लेग को स्ट्रेट रखना है, फुट ऊपर नीचे करना है, तो लेग को स्ट्रेच करने वाले एक्सरसाइजेस हैं वो एडवाइस कर सकते हैं। और जब भी इफ़ द स्लीपिंग पोजीशन, द लेग शुड बी एलिवेटेड, तो the mother can use pillows, the comfortable beddings, comfortable pillows can also be used, so that relaxes. Diet में in which the woman reduces her intake of milk, a dietary adjustment has to be done. Supplementary calcium is given to the mother during the pregnancy. Then massaging the leg, application of local heat can be effective if it is paining very much, तो hot application जो है लेग पे, लोकल हॉट एप्लीकेशन वो हम कर सकते हैं। देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड कैल्शियम सप्लीमेंट देते ही हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। तो ये हमारा मैनेजमेंट होता है फॉर द मसल्स क्रैम्प्स। नाउ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में जो कॉमन माइनर डिसऑर्डर्स हैं वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत कॉमन है। एक तो फर्स्ट थ्री ट्राइमेस्टर में होता है, और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए होता है क्योंकि इट पुट द pressure of the gravid uterus is there on the bladder, so इसलिए frequency of urination देखा जा सकता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट में यही है कि होल्ड नहीं करना है यूरिनेशन को, बिकॉज इट विल लीड टू UTI। तो जब भी यूरिनेशन होता है तो शी हैव टू go for the emptying the bladder, that is the only management. Then the circulatory system.
In the circulatory system, the first one is fainting. In the early pregnancy, you can see the mothers, not all the mothers, some of the mother get because fainting because of the vasodilation, and because of the influence of the progesterone, which causes vasodilation, and that leads to fainting. In the late pregnancy, mother may feel faint, lying flat on the back. That means because of the gravid uterus, that put the pressure over the inferior vena cava, and उसके वजह से the return of the blood to the heart is delayed or slowed. इसकी वजह से fainting can be seen in the late pregnancy. Varicosity is also one of the very common minor disorders during the pregnancy. It occurs during pregnancy, usually in the later months. That is because of the obstruction of venous return to the pregnant uterus. Varicosity is the abnormal dilation and the tortuous vein, often forming sac-like pocket, etc., and factors that influence the development of varies in pregnant women during the women are hormonal and mechanical. Both estrogen and progesterone level rises during the pregnancy and get relax the smooth muscles, not only in the uterus but also in the walls of the vein, in the lower and upper and lower extremities. तो वेरिकोसिटी एक कॉमन माइनर डिसऑर्डर्स है जो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और ये होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोजेस्ट्रॉन लेवल, जिसकी वजह से वैजो डायलेशन होता है और वो रिलैक्स कर देता है स्मूथ मसल्स को, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविड यूट्रस बहुत प्रेशर होने की वजह से लेग में वेरिकोसिटी आप देख सकते हैं. So this is the varicose vein. You can see the tortuous vein. Then the symptoms of varicose vein, that can be aching and discomfort on the legs, itching of the skin of the legs, and swelling of the ankles. Some severe symptoms like thrombophlebitis and bleeding. What can be the management for this varicosity is wearing of elastic ace bandage is there, or Jobst horse may also ordered by the physician to compress the varicose vein. तो women with जिसको varicose vein है उनको ज़्यादा स्टैंडिंग या लॉन्ग पीरियड के लिए स्टैंडिंग पोजीशन नहीं लेना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ओनली दिस वेरिकोस वेन इज़ हैपनिंग, है ना. तो इसलिए ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है. प्लेसिंग द लेग अपराइट पोजीशन में जब सोते समय हैं तब भी जो पैर है उसको एलिवेट करना है, बैठते समय पैर एलिवेट करके रखना है, और इससे स्वेलिंग कम होती है और प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है. अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, फाइबर रिच डाइट लेना है. इलास्टिक स्टॉकिंग्स होती हैं वो पहन सकते हैं. एक्सरसाइज कर सकते हैं काफ मसल्स की, जिससे कि दैट circulation can go properly. So you can see this is the elastic ace bandage जो है ये यूज़ कर सकते हैं, या जॉबस्टन्स इलास्टिक स्टॉकिंग्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और स्टॉकिंग्स के जो सॉक्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इस नर्वस सिस्टम में जो कॉमन माइनर डिसऑर्डर वो है कार्पल टनल सिंड्रोम. ये क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन वेयर जिट कॉजेज द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व्स. जो मीडियन नर्व्स होते हैं उसमें कंप्रेशन होने की वजह से जो हाथ है नमनेस होता है, पिन लाइक नीडल्स, झुनझुनी खाना हम कह सकते हैं, और नमनेस हो जाता है वहाँ पर. यूजुअली हैपन्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, एंड ये इसलिए होता है कि फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से, एडिमा होने की वजह से जो प्रेशर है वो मीडियन मसल्स नर्व्स में हो रहा है, इसकी वजह से यू कैन सी दिस इज़ द okay. So you can see here the median muscles, the median
median nerve. So here there is a pressure over these nerves that leads to numbness. यहाँ पर हाथ जो है पूरा numbness हो जाता है, झुनझुनी आती है, ये होता है कार्पल टनल सिंड्रोम. इसके लिए मैनेजमेंट क्या करना है? वेयरिंग अ स्लिंट एट द नाइट, हाथ को रेस्टिंग पोजीशन में देने के लिए या तो पिलो हाथ के ऊपर रखें, पिलो के ऊपर हाथ रखना है, और सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है. फ्लेक्सिंग द फिंगर्स वाइल द आर्म इज़ हेल्ड अबव द हेड, उसको फ्लेक्स करके रखें अगर हेड के ऊपर रखा है तो. ये यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी, ये बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी इज़ ओनली हैपनिंग. Then next one is insomnia. Insomnia is also common condition during the pregnancy because of the discomfort. बहुत सारे discomfort होते हैं, fetal movement होता है, frequency of micturition होता है, बार बार micturition करने जाना होता है, और पोजीशन नहीं मिल पाना है, कंफर्टेबल पोजीशन. एक पोजीशन लेते हैं वहाँ पर पेन होने लगता है, फिर दूसरा पोजीशन लेते पेन होने लगता है. तो इसकी वजह से इंसोम्निया तो रहता ही है, साथ में एंग्जाइटी और फियर की वजह से भी. तो क्या कर सकते हैं इंसोम्निया के लिए? तो मदर कैन टेक रेस्ट ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम ऑल्सो, एंड शी कैन टेक इनफ ऑफ मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द बेड टाइम. देन पिलोज जो है, कंफर्टेबल पिलोज एब्डोमेन के नीचे, पीठ में, लेग में, लैटरल पोजीशन में ऐसे लेके सो सकते हैं जिससे कि रिलैक्स हो सके, जो पेन है, मसल्स हैं वहाँ पर रिलैक्सेशन मिल सके, और इसकी वजह से नींद सही से आएगी. अपने एंग्जाइटी और फियर के बारे में बात करना ताकि थोड़ा लाइट फील करें. तो दिस ऑल कैन बी द मैनेजमेंट ऑफ द इंसोम्निया. देन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम. तो स्किन में जो मेन कॉमन स्किन में जो कॉमन माइनर डिसऑर्डर्स हम देख सकते हैं वो है जनरलाइज्ड इचिंग, और ये एब्डोमेन में स्टार्ट होता है, स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की जिसकी वजह से इचिंग सेंसेशन होता है. और लिवर के रिस्पॉन्स ऑफ द हार्मोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिलिरुबिन लेवल भी हाई होता है, इसकी वजह से भी इचिंग होता है. जैसे ही डिलीवरी होती है सब क्लियर हो जाता है. सो दैट आर द कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स. देन डिसऑर्डर्स जिसको हम वार्निंग साइंस भी कह सकते हैं, जिसमें अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है. जैसे वजाइनल ब्लीडिंग है, फीटल मूवमेंट कम होना, फ्रंटल और रिकरिंग हेडेक होना, सडन स्वेलिंग या एडिमा बहुत ज़्यादा होना, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीमेच्योर ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सडन नोशिया एंड सिकनेस बहुत ज़्यादा एग्रावेट होना, एपिगैस्ट्रिक पेन. तो ये हम कह सकते हैं वार्निंग साइंस. और ये सारी कंडीशन अगर हो रही है तो मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द minor disorders of pregnancy. These are the small disorders that commonly happens during the pregnancy, and which the mother can take small management, and that we have to tell the mother during the pregnancy ki these all things she can do during the symptoms. So that will help the mother, and as a nurse you should be able to tell all these symptoms, that is all the management that can be done. Hope all of you have understood. Thank you very much.